میں کام کر کر کے تھکن سے چور ہو گئی تھی۔ تبھی میرے دل میں ایک شدید خواہش اتری کہ جا کر 2 گھڑی بستر پر لیٹ کر آرام کر لوں، لیکن اس گھر میں آرام کرنا میرے لیے ناممکن تھا، کیونکہ میں اس گھر کا فرد نہیں بلکہ یہاں پر صرف ایک ملازمہ تھی۔ میں نیچے لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی، جبھی وہ لمبا چوڑا سا شخص میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور مجھ سے کہنے لگا، جاؤ جا کر اوپر والے کمرے کی صفائی کرو جو میری خواب گاہ ہے۔ میں جو آرام کرنے کا سوچ رہی تھی، اس نئے حکم پر تو جیسے تھکن میرے وجود پر اور بھی حاوی ہو گئی۔ مجھے حکم دے کر وہ واپس جا چکا تھا۔ میں دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتی اوپر بنی منزل پر آ گئی، پھر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ کمرہ تھا یا کوئی محل؟ جا بجا سفید پردوں سے سجا ہوا کمرہ، فانوسی فانوس پورے گھر میں روشن تھے۔ سفید اور سنہرے رنگ کا ایسا امتزاج میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور وہاں موجود نرم اور ملائم بستر۔ اگر بندہ اس بستر پر لیٹ جائے تو شاید بستر کے اندر ہی دھس جائے۔ میرا بدن تو ویسے ہی تھکن سے چور چور ہو رہا تھا۔ جب بھی میں دل میں سوچتی کہ کون سا شخص مجھے دیکھ رہا ہے، کیوں نہ جانے 5 منٹ لیٹ کر بستر پر آرام کر لیا جائے، میں خود سے کہتے ہوئے مسکرا دی اور دل میں سوچنے لگی کہ واہ مہرو، تیری تو قسمت ہی کھل گئی اس گھر کی ملازمہ بن کر۔ میں مسکراتے ہوئے اپنے آپ سے یہ کہتے اس سفید بستر پر لیٹ گئی۔ جب ہی میرے اوپر نیند طاری ہو گئی اور کچھ ہی لمحوں میں نیند کی وادی میں سفر کرنے لگی۔ نہ جانے ایسے کتنے لمحے گزر گئے، جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی نرم اور ملائم بستر پر تھی، یعنی کہ مجھے سوتے ہوئے نہ جانے کتنی ہی دیر گزر چکی تھی، اور اگر مالک نے دیکھ لیا ہوا تو؟ ہائے، یہ سوچ کر ہی مجھے زوردار جھٹکا لگا اور میں جلدی سے اٹھی۔ لیکن جیسے ہی میں اٹھی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کی۔ میری نظر جیسے ہی سامنے شیشے پر پڑی تو میں دھک رہ گئی، لیکن وہاں پر میں مہرو نہیں بلکہ کوئی اور۔ میرا نام مہرو ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ مجھ سے چھوٹی بس ایک ہی بہن تھی جس کا نام نورا تھا۔ میرے بابا کا بہت عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا اور ماں بیماری میں بستر پر پڑی تھی۔ ایسے میں ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ ماں آج پھر بری طرح سے کھانس رہی تھی، لیکن کھانسی کم بخت سانس ہی نہیں لینے دے رہی تھی۔ میں نے بالٹی سے پانی لیا اور اماں کو پلانے لگی، اور دل ہی دل میں دکھ سے سوچنے لگی کہ کاش میں اپنی اماں کے لیے کچھ کر سکتی۔ بیچاری اماں کی بیماری تو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی جب نورا باہر سے کھیلتی ہوئی آئی اور مجھ سے کہنے لگی، باجی کھانے کے لیے کچھ رکھا ہے؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کی بات پر میں منہ نیچے کیے جیسے شرمندہ سی ہو گئی۔ گھر میں آٹا تو دور کی بات، اس وقت نمک بھی نہیں تھا۔ میرا دل پوری طرح سے اداس ہونے لگا۔ میں اس سے کہنے لگی، تھوڑی دیر صبر کر لو، ابھی دکان والے چچا کے پاس جاتی ہوں، اگر اس نے تھوڑا سا راشن ادھار دے دیا تو تیرے لیے فٹافٹ ایک چینی کا پراٹھا بنا کر دیتی ہوں۔ میری بات سن کر نورا کے چہرے پر ایک چمک آ گئی۔ وہ تو ویسے ہی چینی کا پراٹھا کھانے کی شوقین تھی، اسی لیے خوشی خوشی واپس کھیلنے چلی گئی۔ میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے ہاتھ صاف کیا، پھر اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ دوپٹے سے چہرہ صاف کر رہی تھی جب شیشے پر میری نگاہ پڑی۔ میرا کالا چہرہ اس میں واضح تھا۔ چہرے پر موجود جا بجا دانے میری بدصورتی کا احساس مجھے پوری طرح سے دلاتے تھے۔ میری بدصورتی کے تو کیا کہنے تھے، شاید چڑیلیں بھی میری بدصورتی کو دیکھ کر شرما جائیں۔ میں خود ہی خود سے کہنے لگی، اپنا آپ میں مذاق اس حد تک اڑاتی تھی۔ میرے اماں اور ابا دونوں ہی کالے تھے اور یہ بدصورتی مجھے ان سے ورثے میں ملی تھی۔ لیکن نورا جو مجھ سے چھوٹی تھی، بلکہ بہت ہی زیادہ، تقریباً 6-7 سال چھوٹی تھی، اس کی رنگت میرے مقابلے میں صاف تھی، لیکن میں اتنے کالے رنگ کی تھی کہ میرے سفید دانت میرے چہرے پر موتی کی طرح چمکتے نظر آتے۔ میں باہر جاتی تو اگر کوئی چند منٹ بھی میرے چہرے پر نظر لگاتا تو فوراً مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ یقیناً میری بدصورتی غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں جہاں بھی جاتی چہرے پر نقاب کر لیتی۔ کبھی کبھار آئینہ دیکھتے ہوئے دل سے شکوہ بھی نکلتا، جو بنانے والے تھوڑا مجھ پر رحم کھا لیتا تو کم از کم آئینے میں مجھے اپنا چہرہ دیکھتے شرم تو نہ آتی۔ بچپن میں تو ساتھ والی لڑکیاں بھی میرا مذاق اڑاتی تھی،
लेकिन जब मुझे उन बातों की कोई समझ नहीं थी, जैसे जैसे बड़ी हुई तो आसपास के लोगों ने एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि मेहरू तो बहुत काली है, तेरे ऊपर तो मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा। किसी का बच्चा रोता तो उसकी माँ मजाक ही मजाक में उससे कहती कि अगर तुम चुप न हुए तो मैं मेहरू को बुला लूँगी। मैं जानती थी कि मेरी दोस्त भी मेरे पीछे से काली डाइन या काली चुड़ैल के नाम से बुलाती है मुझे। मेरा अब्बा कई सालों पहले मर चुका था। अम्मा ने सारी ज़िंदगी लोगों के घरों में काम करके घर चलाया था। ताकत से ज़्यादा काम करने की वजह से उनकी हिम्मत वक्त से पहले ही जवाब दे गई थी। अब मोहल्ले की औरतें आती हैं तो मुझे कहती कि मेहरू, कौन सा कोई बड़ा भाई है, अब तो यही घर को चलाना है, तू ही कहीं काम पर लग जाए या किसी के घर पर काम कर ले ताकि तेरे घर का गुजारा तो चल सके। मुझे उनकी बातें बहुत तकलीफ़ देती थी। मैं सोचती थी कि मैं किसी और जगह काम कर दूं, लेकिन किसी के घर की मुलाजमा बनकर काम करना मुझे मंजूर नहीं था। इसीलिए अभी तक मैंने कभी भी काम नहीं ढूंढा था और अम्मा के बस में नहीं रहा था कि वो लोगों के घरों में काम करें। आहिस्ता आहिस्ता करके गुर्बत ने इतनी मजबूती से अपने पंजे हमारे घर में गाड़े कि घर में आज नमक तक मौजूद नहीं था। फिर मैंने अपनी बड़ी सी काली चादर ओढ़ी और सोचा कि करियाने की दुकान पर चाचा से थोड़ा सा राशन उधार ले आती हूँ। ये सोचकर मेरे कदम उनकी दुकान की तरफ उठकर चले गए। शुक्र की दुकान पर कोई आदमी मौजूद नहीं था, सिर्फ चचा ही बैठा था। मैं फिर चचा के पास भाग कर गई और कहने लगी कि चचा, मुझे थोड़ा सा राशन चाहिए, अगर आप दे देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। मेरी बात सुनकर वो दुकान वाला चचा मुझे घूरने लगा और बोला, पहले ही मेरी दुकान नहीं चल रही और ऊपर से तुम रोज़ रोज़ उधार राशन लेने आ जाती हो। पहले वाले पैसे कौन सा तेरी माँ ने चुकाए? तुम दोनों माँ बेटी का तो लगता है मेरी दुकान को खाली करने का इरादा है। वो मुझे बातें सुनाने लगा, लेकिन मुझे उसकी बातों से कोई गर्ज नहीं थी। मुझे अपनी बहन का पेट भरना था, इसीलिए उसकी बातें सुनने पर मजबूर थी। मैं चचा से कहने लगी कि चचा, अभी थोड़ा सा राशन दे दो। चचा, मैं वादा करती हूँ कि आपके पैसे जल्दी दे दूँगी। वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगा, लेकिन शुक्र था कि मुझे राशन देने पर राज़ी था। जल्दी जल्दी राशन उठाकर मैं घर आ गई। राशन थोड़ा था, लेकिन ये था कि हमारा एक माह तक गुजारा हो ही जाता। जल्दी जल्दी नूरा को रोटी बनाकर अम्मा के लिए भी एक पतली सी रोटी बनाकर मैंने रख दी। तभी बराबर वाली खाला कुलसूम चली आई और अम्मा को देखने लगी, जिनकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। फिर वो मुझे कहने लगी, मेहरू, तू ही देख इसकी हालत कितनी ख़राब है, इसे तो दवाइयों की ज़रूरत है। उनकी बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। फिर मैं खाला कुलसूम से कहने लगी, खाला, घर में एक लुकमा नहीं है, मैं कैसे अम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? तो खाला कुलसूम मुझसे कहने लगी, मेहरू, तेरी माँ की हालत कितनी ख़राब हो रही है, इसे तो दवाइयों की ज़रूरत है। उनकी बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। फिर मैं खाला कुलसूम से कहने लगी, खाला, घर में 1 रुपया नहीं है, मैं कैसे अम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? तो खाला कुलसूम मुझसे कहने लगी कि देख, जब भी तुझे समझाती हूँ कि कहीं मेहनत मजदूरी कर ले, किसी के बर्तन मांज ले ताकि तेरे हाथ में 4 पैसे आएं, अब तूने ही घर को चलाना है। मैं चुप थी, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं था। फिर मैं खाला को कहने लगी कि खाला, कल मैं आपके साथ चलूँगी, आप मुझे किसी के घर पर काम करवा देना। खाला ने इस बात में सर हिला दिया। मैं खाला के साथ काम ढूंढने के लिए पूरा दिन सड़कों पर घूमती रही। काम मांगने के लिए बड़ी बड़ी कोठियों के दरवाजे बजा बजा कर पूछती रही, लेकिन मेरी किस्मत बुरी थी कि किसी ने भी मुझे काम पर नहीं रखा। मैं रात को आकर फिर शीशे के सामने खड़ी हो गई। मेरा बदसूरत चेहरा मुझे आईने के सामने नज़र आ रहा था। फिर मैंने दिल में सोचा कि शायद कोठियों वाले मेरी शक्ल देखकर डर गए होंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे काम नहीं दिया। घर के हालात इंतहाई ख़राब होते जा रहे थे। मुझे जल्द अज जल्द कोई काम ढूंढना था। फिर खाला ने दूसरे दिन मुझे अपने साथ लिया और हम दोनों दोबारा से काम की तलाश में निकल पड़े। पूरा दिन सड़कों पर मारे मारे फिरने के बाद किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। एक बार फिर से मैं मायूस होकर घर लौट आई। तीसरे दिन खाला की तबीयत ख़राब थी।
میں نے اکیلے ہی گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ پھر کافی دیر پھرتے پھرتے کئی گھنٹے گزر گئے، لیکن مجھے امید نہیں نظر آ رہی تھی کہ کوئی مجھے کام دے گا۔ یہ بڑی بڑی کوٹھیوں والے مجھے اپنی نوکرانی تک بنانے کو تیار نہیں تھے۔ دھوپ میں پھر پھر کر میرا رنگ اب کالا ہو چکا تھا، انتہائی کالا دکھنے لگا تھا۔ میں بھوکی پیاسی بے مقصد سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ جانے انجانے میں میرے قدم اس طرف اٹھ گئے جہاں پر کوئی گھر نہیں تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں پوش علاقے سے کافی دور نکل آئی تھی۔ یوں میری نظر ایک جنگل پر بنی ایک شاندار کوٹھی پر پڑی۔ بلا شبہ دور سے دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس کوٹھی میں اپنی قسمت آزما کر دیکھتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مجھے مالکن اپنے کام پر رکھ لے۔ اتنی دور تک چلنے کے بعد ہی میں اس کوٹھی پر پہنچ پائی۔ کوٹھی پر چوکیدار موجود نہیں تھا۔ میں نے خود ہی گیٹ بجا دیا۔ کھولنے والا ایک آدمی تھا جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے غور سے دیکھنے کا مطلب سمجھتی تھی۔ شاید اس نے زندگی میں میری سے بد شکل لڑکی نہیں دیکھی تھی، اسی لیے میں نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے جلدی سے کہا، صاحب جی مجھے کام کی ضرورت ہے، میرے گھر کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ اگر مجھے کام نہیں ملا تو شاید میری چھوٹی بہن اور ماں بھوکے ہی مر جائیں۔ اس نے چپ چاپ میری بات سنی، پھر وہ شخص بولا تو اس کی آواز خاصی بھاری تھی۔ پہلے تو میں اس کی آواز سن کر چونک گئی، اتنی بھاری آواز میں نے پہلی دفعہ سنی تھی۔ پھر وہ پوچھنے لگا، کیا کام کرنا ہے تمہیں؟ میں دل ہی دل میں خوش ہوئی اور اس شخص کو کہنے لگی کہ مجھے سارے گھر کا کام کرنا آتا ہے، صفائی ستھرائی، کھانا، کپڑے وغیرہ دھونا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا کہ ٹھیک ہے، کل سے کام پر آ جانا۔ میں حیران ہونے لگی، مجھے تو کام ملنے کی امید نہیں تھی۔ اس شخص نے مجھے اتنی آسانی سے کام دے دیا۔ میں نے گھر آ کر اماں کو بتایا اور خوش ہو کر کہنے لگی کہ میں تیرا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواؤں گی۔ اماں بے دلی سے مسکرا دی، کیونکہ جب سے وہ بیمار رہنے لگی تھی شاید انہیں اب زندگی کی کوئی امید ہی نہیں رہی تھی۔ دوسرے دن میں کام پر جانے لگی تو اماں کو تاکید کی کہ اماں نورا کا خیال رکھنا، زیادہ گھر سے باہر جا کر نہ کھیلنے دینا۔ نورا کو بھی میں نے اچھے طرح سمجھا دیا تھا۔ پھر بڑی سی چادر اوڑھ کر میں گھر سے نکل آئی۔ بے شک اس گھر تک پہنچنے کا راستہ بہت پرخطر تھا، لیکن پھر بھی کام کے لالچ نے مجھے اس حد تک پہنچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج پھر دروازہ کھولنے والا وہی شخص تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ پورے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ مجھے ابھی گھر کی صفائی کرتے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب مجھے سیڑھیوں سے اترتی ایک لڑکی نظر آئی۔ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی، لیکن حیرت مجھے تب ہوئی جب اس نے اپنے چہرے کو ایک سائڈ سے پورا ڈھک رکھا تھا۔ سر پر دوپٹہ لپیٹا تھا، لیکن دوپٹے کے اندر سے صرف اس کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ نیچے لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس چھپے چہرے میں بھی صرف اس کی ایک آنکھ باہر جھانک رہی تھی، لیکن اس کے آدھے چہرے سے بھی اندازہ تھا کہ وہ لڑکی کس قدر خوبصورت ہوگی۔ وہ چپ چاپ صوفے پر آنکھیں موندے لیٹ گئی۔ عجیب سی پوری سراریت پورے گھر میں پھیلی تھی۔ تبھی وہ لمبا چوڑا شخص اندر آیا اور لڑکی سے کہنے لگا، تو نیچے کیوں اتری ہے؟ میں نے تجھے منع کیا تھا نا۔ اس آدمی کا انداز کافی سخت تھا، تو وہ لڑکی بغیر ڈرے اس سے کہنے لگی کہ کمرے میں میرا دل گھبرا رہا تھا، اسی لیے میں نیچے چلی آئی۔ لیکن وہ شخص اسے اصرار کرنے لگا کہ واپس اوپر کمرے میں جاؤ۔ وہ لڑکی ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اوپر کمرے میں بھاگ گئی۔ میں حیران پریشان کھڑی تھی۔ اس لڑکی کا نیچے آنا کیا اس شخص کو اتنا برا لگا تھا؟ مجھے کام کرتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ ایک دن میں ڈرتے ڈرتے اس شخص سے کہنے لگی، صاحب جی مجھے تھوڑے سے پیسے ایڈوانس دے دیں، وہ آپ میری تنخواہ سے کاٹ لینا۔ مجھے اس وقت اپنی ماں کا علاج کروانا ہے، اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے راشن تک نہیں ہے۔ اس نے کچھ کہے بغیر نوٹوں کی ایک گڈی میرے ہاتھ پر رکھ دی اور خاموشی سے اوپر چلا گیا۔ میں چپ چاپ ساکت حیران سی اسے کھڑی دیکھتی رہی۔ دکھنے میں وہ شخص بڑا بے رحم سا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس نے اتنے سارے نوٹ دے کر میرا دل جیت لیا۔ ان پیسوں کو میں نے کریانے والے دکان کی چچا سے سارے پیسے اتار کے
और अम्मा को लेकर एक सरकारी अस्पताल में चली गई। लेकिन वहाँ एक बुरी खबर मेरी मुंतज़िर थी। जब डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ के तो दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, अगर तुम इलाज करवाओगी तो वो इलाज बहुत महंगा है, इसलिए इन्हें घर ले जाओ, जितनी इनकी ज़िंदगी बाकी है इनको सुकून से गुजारने दो। मैं रोते रोते अम्मा को घर वापस ले आई। मैं सोचती थी कि अगर अम्मा को कुछ हो गया तो मैं और नूरा भला किसके सहारे ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। एक रात अम्मा सोई तो दोबारा उठ नहीं सकी। मेरी और नूरा की तो दुनिया ही लुट गई थी। हम दोनों भरी दुनिया में अकेले रह गए थे। फिर मोहल्ले वालों ने मुझे समझाया कि तुमने अपनी छोटी बहन को पालना है, हिम्मत करो, खुद कमाओ, अपना पेट भी भरो और अपनी बहन को भी पालो। मैं चुपचाप आंसू बहा रही थी। मुझे इस बात की संगीनी का अंदाज़ा था। अम्मा की वफ़ात के 3 दिन बाद मैं काम पर जाने की वापस तैयारी करने लगी। नोरा को मैंने खाला कुलसूम के घर भेज दिया था। पूरा दिन उसने वहाँ रहना था। फिर मैं शाम को उसे अपने साथ लेकर आ जाती। मैं पैदल उस कोठी तक पहुँच गई थी। फिर उसके अंदर जाकर मैं काम काज करने लगी। मैं काम काज में मसरूफ़ थी। जब मैं गर्दन मोड़कर पीछे देखने लगी तो लंबा चौड़ा शख्स पीछे खड़ा मुझे गुस्से से घूर रहा था। यकीनन वो इसलिए गुस्सा था कि मैं इतने दिन से काम पर नहीं आई थी। तभी मैं सर झुकाकर कहने लगी कि साहब जी, मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, तभी मैं काम पर नहीं आ सकी। मैंने उसे दुखी लहजे में कहा, लेकिन उसने जो कहा वो सुनकर मैं हैरान रह गई। वो मुझसे कहने लगा, तो क्या हुआ अगर तुम्हारी माँ मर गई थी तो? मरना तो आखिर सभी ने है, हमारा तो पूरा कबीला मर गया था, लेकिन फिर भी तुम्हारी तरह रोनी सूरत बनाकर नहीं घूमते थे। फिर वो मुझे ताकीद करने लगा कि भले कुछ भी हो जाए दोबारा छुट्टी नहीं करनी। 3-4 दिन सफाई ना करने की वजह से पूरा घर मिट्टी में हटा हुआ था। इतनी सफाई सुथराई करने के बावजूद घर किसी भी तरह से साफ होकर नहीं दे रहा था। मैं थकन से चूर हो चुकी थी। तभी मैंने उस शख्स की ख्वाबगाह का रुख किया और उसके नरम और मुलायम बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी। मैं भी लेटी ही थी कि न जाने कब नींद की वादियों में चली गई। अचानक से जाग गई तो एकदम डर गई कि न जाने कब से सो रही हूँ। मेरे जिस्म को एक ज़ोरदार झटका लगा। मैं उठकर बैठ गई, लेकिन मुझे अपने अंदर एक तब्दीली सी महसूस हुई। मेरी नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ी तो मेरे होश आवाज़ गुम हो गए, क्योंकि वहाँ महरू मैं नहीं थी, बल्कि वहाँ मुझे अपनी बजाय किसी और की शक्ल नज़र आ रही थी। लेकिन वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसको शीशे में देख रही थी। ये मैं नहीं थी तो फिर कौन है? मैंने अपने हाथों पाँव की तरफ देखा। इंतहाई काली रंगत वाले मेरे हाथ पाँव सुनहरी रंगत में ढल रहे थे। मेरा पूरा वजूद मुकम्मल तब्दील हो चुका था। मैं अपने आप में नहीं रही। मैं अपने आप को घूम फिर कर देखने लगी। आईने में मैं नहीं बल्कि कोई शहजादी थी। मेरे चेहरे पर खुशी फूट रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं आसमान पर उड़ रही हूँ। तभी कमरे का दरवाज़ा एकदम से खुला। वो लंबा चौड़ा शख्स पूरी तरह अंदर आया और मुझे गौर से देखने लगा। मैं अपनी खूबसूरती को आंखें फाड़ कर देख रही थी। उसके पीछे वही आधा चेहरा ढांपे लड़की खड़ी थी। उसे देखकर मैं चौंक गई। हैरत ने मुझे ऐसे जकड़ा कि चंद सानिये तक बोल ही नहीं सकी। उस लड़की का आधा चेहरा बिल्कुल मेरी बदसूरत शक्ल जैसा हो गया था। मैं हैरान थी कि उसके रूप में मैं ढल चुकी थी और वो मेरे रूप में ढल चुकी थी। वो शख्स कहने लगा, कैसी लगी तुम्हें ये तब्दीली? मैंने नज़रें झुका ली। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है। जब समझ आई तो मैं उस शख्स से एतमाद से कहने लगी कि ज़िंदगी के इतने साल मैंने बदसूरत लड़की बनकर गुजारे, कोई मुझ पर नज़र डालना गवारा नहीं करता था, लेकिन इस रूप में ढलकर अपने आप को किसी परिस्तान की शहजादी समझ रही हूँ। मैं खुशी से बोली तो वह कहने लगा, ठीक है, अगर अपनी खूबसूरती पाना चाहती हो तो मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं हैरान होकर ये बात सुन रही थी। मैं उससे कहने लगी कि हाँ, मैं ये रंगो रूप पाने के लिए हर काम कर सकती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि ठीक है, ये रंगो रूप तुम्हें तब मिलेगा जब मेरा काम पूरा करो। यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक बस्ती है। उस बस्ती के अंदर एक लड़की है। तुम्हें उस लड़की की मदद करना होगी और तुम्हारे जैसे इंसानों के हाथों इस कदर मजबूर हो चुकी है कि आज या कल खुदकुशी कर सकती है। तुम्हें जल्द अज जल्द उस तक पहुँच उसे इस काम से रोकना होगा। मैं उसकी बातें हैरानगी से सुन रही थी। फिर उससे कहने लगी कि वो लड़की कौन है?
आखिर मैं उसकी मदद क्यों कर सकती हूँ? वो कहने लगा, तुम उसकी मदद इसलिए कर सकती हो क्योंकि तुम इंसान हो, जबकि हम जिनजात भले कितने ताकतवर हों, लेकिन बाज़ काम ऐसे होते हैं जो इंसान ही कर सकते हैं। मैं उनके मुंह से ये बात सुनकर उछल पड़ी। क्या इतने दिन से मैं जिन्नात के साथ रह रही थी? क्या ये इंसानों का नहीं बल्कि जिन्नात का घर है? तो वो मुझसे कहने लगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाते तो इतने दिन से पहुंचा देते, लिहाजा डरो नहीं और जल्दी करो, मेरे पास टाइम कम है, मुझे हर सूरत लड़की को बचाना है। मेरे दिल में अभी भी उस लड़की के लिए हमदर्दी आई तो मैं भी मान गई, लेकिन दिल डर रहा था कि कुछ गलत ना हो। फिर अल्लाह का नाम लेकर मुतमईन हो गई। फिर मैंने उसकी हिदायत पाकर जल्दी से घर से निकली और जंगल की तरफ जाने लगी। चल चल कर मेरे पाँव थक गए, लेकिन वो मुझे बस्ती नज़र नहीं आ रही थी। जंगल में भटकती फिरती काफ़ी देर हो गई, तभी दूर मुझे मकानात नज़र आने लगे। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं जल्दी से मकानात की तरफ बढ़ने लगी। यकीनन ये वो बस्ती थी जिस बस्ती का जिन्नात ने मुझे कहा था। आखिर मैं उस बस्ती तक पहुंचने में कामयाब हो गई। फिर उस बस्ती से गुजरने वाले एक शख्स से रुककर पूछने लगी कि इस बस्ती में मुझे एक लड़की से मिलना है जो बहुत परेशान है और मायूस है। मैं उसकी नाम और शक्ल तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो लड़की हालात से परेशान है। वो शख्स रुककर गौर से देखने लगा, फिर कहने लगा कि तुम तारा के बारे में तो नहीं पूछ रही, क्योंकि इस पूरी बस्ती में तारा ही है जो इंसानों के हाथ तो आजकल जलीलो ख्वार हो रही है। मैंने जल्दी से गर्दन हाँ में हिला दी और कहने लगी, हाँ वो लड़की तारा ही है, मुझे उससे मिलवा दो किसी भी तरह। उस आदमी ने इस बात में गर्दन हिलाई और मुझे लेकर चल पड़ा। उसने मुझे छोटे से बने मकान के बाहर छोड़ा और मुझसे कहने लगा कि इस घर में वो लड़की तारा रहती है। मैंने धीरे से दरवाज़ा बजाया। चंद सेकंड बाद दरवाज़ा खुल चुका था। जिस लड़की ने दरवाज़ा खोला उसने चेहरे को आधा ढांपा था, बिल्कुल उस लड़की की तरह जो मुझे कोठी में मिली थी, लेकिन उस लड़की की शक्ल उस लड़की से काफ़ी मुख्तलिफ थी। तभी मैं उससे कहने लगी कि मुझे आपके पास किसी ने भेजा है मदद के लिए। तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ कि क्या परेशानी है ताकि कोई हल निकालूं। वो लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर मुझे साथ अंदर ले गई। चुपचाप नज़र झुका कर बैठी। मैं उससे पूछने लगी कि तुमने अपना चेहरा क्यों आधा ढांपा है। वो लड़की मुझे कहने लगी, इसलिए कि कहीं मेरी हैबतनाक शक्ल देखकर लोग डर ना जाएं। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी और इसरार करने लगी कि मुझे चेहरा दिखाओ, मैं नहीं डरूंगी। फिर मैं उसे अपने आप का बताने लगी कि किस तरह मैं इंतहाई बदसूरत लड़की थी। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। अपने चेहरे से पर्दा हटाया। उसका चेहरा बिल्कुल जला था, आँख की जगह पर सिर्फ निशान बाकी था। आधे होंठ पिघलकर बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। कान की जगह भी सिर्फ निशान बाकी था। उसका आधा चेहरा बिल्कुल गर्दन तक जला था। उसे देखकर मैं साकत थी, मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। फिर मैं उससे कहने लगी कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है? किसने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया है? फिर उसने चेहरे को वापस ढका और मुझसे उदास लहजे में कहने लगी कि मेरे इस चेहरे को बदसूरत बनाने में किसी और का नहीं, बस्ती के लोगों का हाथ है। मैं गुस्से से खड़ी और लड़की से कहने लगी, बताओ कौन शख्स है जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया? इतना जुल्म वो भी लड़की के साथ कोई इंसान भला कैसे कर सकता है? फिर उसने मुझे हाथ के इशारे से बैठने का इशारा किया और कहने लगी, मैं ही नहीं, बस्ती के लोग पहले भी कई लड़कियों से ऐसा काम कर चुके हैं। इस बस्ती के लोगों को किसी पर बदकारी का शुबा हो तो वो उस लड़की का यही हाल करते हैं। मैं भी आज से 1 साल पहले इंतहाई खूबसूरत थी। माँ बाप के मरने के बाद खाला के घर रह रही थी। उनके घर में रहने की कीमत उनके घर का सारा काम काज करके चुका रही थी। मेरी काली स्याह आंखें, गालों पर पड़े डिम्पल मुझे सब लड़कियों से मुख्तलिफ बनाते। मेरी खाला की लड़कियां इंतहाई सांवली रंगत की मालिक थी। उनकी आंखें छोटी जबकि होंठ मोटे थे। जब घर आकर खाला के सामने, उनकी लड़कियों के सामने कोई मेरी तारीफ़ करता तो हसद के मारे उनका बुरा हाल होता। मेरी खूबसूरती में मेरा कोई कमाल नहीं था, बल्कि मेरी खूबसूरती रब की अता करदा थी जो सबकी सूरतें बनाता है। लेकिन खाला और उनकी बेटियां मुझसे हसद करने लगी। तभी वो अपनी माँ को उकसाती कि इसे सारे घर के काम काज करवाया करो ताकि ये भी हमारी तरह बदसूरत बन जाए। मुझ पर जवानी का जोश अरूज पर था और जवानी में मेरी खूबसूरती भी कमाल की थी। एक दिन जब मेरी बड़ी वाली कज़न अरीशा के रिश्ते वाले आए थे, खाला ने मुझे कहा कि तुम सिर्फ किचन तक महदूद रहना। लेकिन बुरा हो मेरी किस्मत का, जब हाथ धोने के बहाने खातून किचन में आ गई। उसने मुझे काम करते देख लिया था। वो मुझे देख कर हैरान थी। शायद मेरी खूबसूरती ही उसको अपने जहन में जकड़ चुकी थी।
तभी वो अंदर जाकर खाला से इसरार करने लगी कि जो लड़की किचन में काम कर रही है उसे हमारे सामने लाया जाए। खाला ने नाचार मुझे बुलाया और वो ख़वातीन अरीशा के बजाय मेरे लिए रिश्ता डालकर चली गई। वो लोग तो चली गई, लेकिन खाला ने मुझे चोटी से पकड़कर इतना मारा कि मेरी रूह तड़प उठी, लेकिन उनके हाथ किसी तरह से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। खाला मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि मैंने जानबूझकर मेहमानों के सामने आई और कहने लगी कि तुम्हें शादी की आग लगी हुई है, सारी ज़िंदगी यहीं पड़े गुजार देगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी। खाला और उसकी बेटियाँ मुझ पर थूक कर चली गई। मैं अपने ज़ख्मों पर मरहम लगाने के लिए अकेली रह गई। खाला ने इतना मारा कि मेरा जिस्म भी उठने से इनकारी था, लेकिन फिर भी इस हालत में घर के सारे काम करती फिर रही थी। लेकिन शायद मेरे साथ अभी कुछ होना बाकी था। जब खाला की नंद का बेटा घर में चला आया, अरीशा और मुनीबा दोनों उसके आगे पीछे घूम रही थी। वो लड़का इंतहाई दर्जे का खूबसूरत, ऊपर से उसकी सरकारी नौकरी लग चुकी थी। इस गांव में वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने आया था। मैं ज़्यादातर दुपट्टे में लिपटी चुपचाप किचन में काम करती। उस दिन खाला की मार खाने के बाद मैंने कोशिश की कि किसी के सामने ना हूँ। एक दिन दुपट्टे को पूरी तरह मुंह पर ढांपे किचन में बर्तन धोने में मसरूफ़ थी, जब वो लड़का मेरे सर पर खड़ा हो गया और मुझसे पानी मांगने लगा। नाचार मुझे पानी देना ही पड़ा। मैंने ग्लास भरकर उसे थमाया। मेरी नज़रें झुकी थी, लेकिन उसकी गहरी नज़रें मैं अपने ऊपर महसूस कर रही थी। वो मुझे गौर से देख रहा था। तभी कहने लगा कि आप इतना काम क्यों करती हैं? मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ आपकी ज़िंदगी काम से शुरू होकर काम पर ही ख़त्म होती है। ज़िंदगी हंस खेल कर गुजारनी चाहिए। मैंने काली आंखें उठाकर उससे देखा और उससे इल्तिजा की, खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं। ज़िंदगी पहले ही मुझ पर आसान नहीं है। खाला या उसकी बेटियों ने मुझे आपसे बातें करते देख लिया तो मेरा जीना दोपहर करेंगी। मेरा उसको यूँ देखना कि वो जैसे कोई बुत बन गया। उसने आज मुझे पहली दफ़ा देखा था। मैंने आज से पहले उसे इतनी गौर से नहीं देखा था। फिर जैसे हमारी मोहब्बत की नई शुरुआत हो गई, मैं धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी। उसकी आंखों में भी मेरे लिए पसंदीदगी साफ थी। एक दिन जब खाला और उसकी बेटियां कहीं गई थी तो चुपके से मेरे पास आया और पूछने लगा, आखिर तुम पुप्पो और उनकी बेटियों से इतना क्यों डरती हो? मैंने उसे सारी बात बताई कि किस तरह मेरी खूबसूरती मेरे लिए अजाब बनी है। अगर तुम्हारी पुप्पो को पता चल गया कि तुम मुझ में दिलचस्पी ले रहे हो तो वो मुझे जान से मारेंगी। वो मुझे यकीन दिलाने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी माँ ने इजाज़त दी है कि मैं खुद से लड़की पसंद करके उसके साथ शादी करूं। मुझे ऐसे लगता है ज़िंदगी में तुम्हारे जैसे हमसफ़र की ज़रूरत है, इसीलिए मैं जैसे ही घर जाऊंगा अम्मी से कहूँगा तुम्हारे लिए मेरा रिश्ता लाएं। मुझे उसकी बातें किसी और दुनिया की सैर करवा रही थी। मैं दिल में खुश थी कि अहमद से शादी के बाद मुझे खाला और उसकी बेटियों के अजाब से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। अब मैं बड़ी खुश रहने लगी, लेकिन मेरी ये खुशी आर्जी साबित हुई। एक दिन जब अहमद मेरे लिए फूलों के गजरे लाया, वो गजरे उसने मुझे चुपके से दिए। मैंने गजरे कमरे में छुपा कर रखे। तभी मुनीरा कमरे में किसी काम से गई और वो गजरे रखे देखे जो अहमद अभी मेरे लिए लेकर आया था। वो गजरे लाकर उसने अपनी माँ के हाथ में रखे और अपनी माँ से कहने लगी, देखो ये कैसे अहमद के साथ रंग रंगेलियाँ मनाती फिर रही है। आखिर इसने अहमद को भी जाल में फंसा लिया। अहमद तो घर पर नहीं था। फिर खाला थी और उसकी मार मुझे बालू से पकड़कर दीवार पर मार रही थी और मुझसे कह रही थी कि तो एक नागिन की पैदा की हुई है, आस्तीन का सांप बनकर हमें ढस रही है। मैं अहमद की अलीशा से शादी करने का सोच रही हूँ और तूने अपना चक्कर पाल लिया। तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मकार लड़की। उनके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी अलीशा भागती हुई आई और अपनी अम्मा से कहने लगी, अम्मी इसे छोड़ दो, अहमद आने वाला है। ऐसा न हो कि सब कुछ देख ले और उसका दिल हमारी तरफ से खट्टा हो जाए। खाला ने मुझे एक धक्का देकर छोड़ा और अपनी बेटियों से कहने लगी, इस चालाक लड़की का तो मैं ऐसा हाल करूंगी कि ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। एक दिन इसने अपनी बात पर अमल कर दिखाया। स्कूल में छुट्टियां होने की वजह से अहमद अपनी माँ से मिलने घर चला गया। खाला ने मुझसे कहा कि मैं और अरीशा एक दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, तुम घर पर रुकोगी। वैसे भी शादी ब्याह की तकरीब होती या किसी की दावत वगैरह तो वो मुझे साथ लेकर न जाती। मैं उनकी बात पर राज़ी थी। फिर भला मेरी क्या मजाल थी कि उनके सामने किसी बात से इनकार करती। मुझे अकेला छोड़कर वो चली गई। फिर बाकी के घर के मैं काम समेटने लगी, इस बात से अनजान थी कि उन्होंने घटिया साजिश अपने जहनों में रचा रखी है। मैं घर का काम काज ख़त्म कर चुकी। रात के 8 बजने वाले थे, लेकिन खाला और उसकी बेटियां अब तक नहीं आई थी। जब दीवार से लड़का कूदा, मैं उसे चोर समझ रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब खाला और उसकी बेटियों की साजिश थी।
वो लड़का जैसे ही घर में घुसा मैं उसे देखकर चीखने वाली थी कि उसने मुझे ज़ोर से पकड़ा, मेरे मुंह पर हाथ रखा। मुझे सांस नहीं आ रहा था। उसने मुझे पकड़कर चारपाई पर डाला और ज़बरदस्ती करने लगा। मेरे कपड़े फट चुके थे। बिखरे बालों और ख़राब हुलिये के साथ मैं पागलों की तरह बैठी लड़के से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस लड़के की कोशिश थी कि किसी भी तरह करके मेरे सारे कपड़े फाड़े। तभी दरवाज़ा बजने लगा और धार से दरवाज़ा खोलकर खाला और उसकी बेटियां और उसके साथ गांव के लोग थे। तभी खाला ने उनके सामने ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया कि हाय हाय, देखो हमारी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर कैसे लड़के से मुंह काला कर रही है। तभी अरीशा और मुनीबा ने उस लड़के को इशारा किया और लड़का पलक झपकते में दीवार फलांग कर गायब हो गया। मैं रोते खाला के पास गई और कहने लगी, खुदा के लिए खाला मुझे बचाओ, वो लड़का मेरी इज्जत लूटने के चक्कर में था, घर में ज़बरदस्ती घुस आया। लेकिन खाला ने एक ज़ोरदार धक्का दिया और ज़मीन पर फेंका। फिर साथ खड़े लोगों से कहने लगी, देखो अपनी बदकिरदारी को कैसे छुपा रही है। इस लड़की ने बहाना करके हम तीनों माँ बेटियों को बाहर भेजा और इसको घर पर बुला लिया। हाय, मैं अपनी जवान बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँ। इस बदकिरदार लड़की की वजह से मेरी बेटियों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। खाला की बदजुबानी के आगे भला मेरी बात का किसने यकीन करना था। खाला सब पर जोर डाल रही थी कि ये खूबसूरती का फ़ायदा उठाकर गांव के मर्दों को फांस रही है, तुम लोग कुछ करो वरना इस गांव की सारी बहन बेटियां बर्बाद होंगी। उन्होंने गांव के सारे लोगों को इतना उकसाया कि मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद करवा दी। एक रात जब मैं बिस्तर पर सोई थी तो खाला और गांव के चंद लोगों ने मिलकर साजिश के ज़रिए मुझे इतना पिटवाया कि मार मार कर बुरा हाल कर दिया। दूसरे दिन मैं ज़ख्मों से चूर वजूद लिए काम कर रही थी। खाला ने रहम नहीं खाया कि मेरी हालत ऐसी और फिर भी मुझसे काम करवा रही थी। तभी मैं गर्म पानी कर रही थी कि अचानक मुझे चक्कर आया और मैं पानी में गिर पड़ी। गर्म पानी में गिरने की वजह से मेरा आधा चेहरा बुरी तरह से जल गया और मैं खूबसूरत से बदसूरत बन गई। मैं चीखें मार कर रोती, लेकिन किसी के सामने जाकर फरियाद क्या करती, क्योंकि उस गांव में कोई मेरा अपना नहीं था। फिर गांव के लोगों ने फैसला किया कि चूंकि ये लड़की बदकार है इसलिए इसे निशान इबरत बना दिया है। उस गांव के कमरे में इसे रखा जाएगा इबरत के तौर पर। जब से मैं इसी कमरे में रह रही हूँ, गांव का कोई शख्स मुझे एक टाइम का खाना देकर चला जाता है और यूँ मैं ज़िंदगी इसी कमरे में महदूद होकर गुजार रही हूँ। अब तो मैं सोचती हूँ कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत बोझ लगने लगी है। मैं उस लड़की की कहानी किसी बुत की मानद सुन रही थी। इतना जुल्म, वो भी यतीम लड़की के साथ। फिर उसके आगे मैं गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि तुम जो भी कहो तुम्हारी खातिर करने को तैयार हूँ, बताओ तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। वो लड़की उदास होकर कहने लगी कि मैं सिर्फ एक बार अहमद से मिलना चाहती हूँ, उसे बताना चाहती हूँ कि मैं बदकिरदार लड़की नहीं थी, बल्कि सिर्फ साजिश के तहत ड्रामा किया गया। वो गांव वालों की बातों में आकर मुझसे बुरी तरह बदगुमान हो गया। मैंने उस लड़की से वादा किया कि कुछ भी हो तुम्हारी अहमद से बात करवा कर रहूँगी। फिर मैंने गांव के लोगों से भी अच्छी तरह से किसी भी तरह करके अहमद का पता हासिल किया और उसके घर पहुंची। वो मुझे देखकर हैरान था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पास किसी वजह से आई हूँ और किसी ने मुझे भेजा है। मैंने उससे कहा कि वो लड़की जिससे तुम प्यार करने लगे थे, आज उसे इस साल में छोड़कर तुम यहाँ भाग कर आए हो, जबकि उसे तुम्हारी ज़रूरत है। वो नज़रें झुका कर रह गया और कहने लगा कि वो लड़की सही नहीं थी। गांव वालों का कहना है कि वो किसी लड़के के साथ पकड़ी गई थी और मैं उससे कहने लगी कि ये तुम्हारी पुप्पो और उसकी बेटियों की साजिश है। वो तारा की खूबसूरती से हसद करती थी, इसीलिए ये सारा ड्रामा रचाया। उस लड़की का किरदार बिल्कुल पाकीज़ा है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ उसी बस्ती में, मैं उस लड़के को तुम्हारे सामने ला फेंकूंगी जिसने सब कुछ तुम्हारी पुप्पो के कहने पर किया। अहमद मुझे हैरत से देख रहा था। मैं खुश थी कि उसने कुछ मेरी बातों पर यकीन किया। फिर उसे लेकर मैं बस्ती में आ गई। जिन्नात मेरी काफ़ी मदद कर रहे थे। फिर मैंने दिल ही दिल में जिन्नात से मदद मांगी और उस लड़के को अपने सामने ला खड़ा किया। वो अहमद से गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि उस औरत ने मुझे लालच दिया था कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करेगी और अपनी आधी दौलत मेरे नाम करेगी। इसी लालच में आकर उसके कहने पर मैंने सारा काम किया था। अहमद ने उसे इतना मारा कि उसके जिस्म से खून बहने लगा। उसके दिल में एहसास नदामत था। एक घटिया औरत और उसकी बेटियों की साजिश की वजह से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। फिर वो तारा के पास आ गया और कहने लगा कि मुझे तुम्हारी खूबसूरती से गर्ज नहीं थी, अब मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने सच्चे दिल से तुमसे मोहब्बत की थी। तारा हैरत भरी नज़रों से उसे देख रही थी। अहमद ने बड़े प्यार से उसका हाथ थामा।
پھر اپنی جیب سے انگوٹھی نکال کر تارا کے ہاتھ میں پہنا دی۔ میں ان دونوں کے ملن پر بے حد خوش تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ احمد نے تارا کو اپنا کر اپنی محبت امر کر دی۔ میرا کام ہو گیا تھا، اب مجھے جلد از جلد اس کوٹھی کی طرف جانا تھا، یہ روپ ہمیشہ کے لیے پانا تھا۔ میں تیز قدموں سے چلتی منزل کی جانب بڑھنے لگی۔ جب میں کوٹھی پر پہنچی تو اس کوٹھی میں وہ شخص موجود تھا، لیکن لڑکی غائب تھی۔ میں اس شخص سے کہنے لگی کہ میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، اب تم بھی وعدے کے مطابق ہمیشہ کے لیے مجھے خوبصورت لڑکی میں ڈھال دو، مجھے اپنی بدصورتی سے بہت تنگی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم کس قدر نادان ہو، میں نے صرف نصیحت کے طور پر تمہیں تارا کا حال بتایا تھا کہ وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنی زندگی کو کس قدر عذاب میں گرفتار کر چکی تھی، اور تم اب بھی خوبصورتی کو پانا چاہتی ہو۔ سوچ لو، سمجھ لو۔ اس کی باتیں واقعی قابل غور تھی۔ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ تارا خوبصورتی کی وجہ سے کس قدر عذاب میں گرفتار ہوئی، اور کل کلا کو لوگوں نے میرے ساتھ بھی یہی حال کرنا تھا۔ نہیں، مجھے یہ خوبصورتی نہیں چاہیے۔ یہ رنگ و روپ ایک طرح کا عذاب ہوتا ہے جو لوگوں کو کبھی بھی اپنی زندگی نہیں جینے دیتا۔ میں نے اس جنات سے کہا کہ تم نے تارا کے ساتھ بہت اچھا کر دیا، اور احمد کے ساتھ اس کی زندگی سیٹ ہو گئی، لیکن اس کی خالہ اور بیٹیوں کو بھی تو آخر سبق ملنا چاہیے تھا۔ انہوں نے تارا کے ساتھ کیا نہیں کیا؟ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ خالہ اور اس کی بیٹیوں کو دنیا میں ہی سزا مل گئی تھی۔ شاید تم نے اس کہانی کے اس پہلو پر غور نہیں کیا، وہ تینوں کے تینوں کار ایکسیڈنٹ میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی تھی، اب اپنا کوئی کام خود نہیں کر سکتی، بلکہ بستی کے لوگ بھی ان کا حال دیکھ کر توبہ توبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے تارا کو برباد کرنا چاہا، لیکن سازش کرتے کرتے خود برباد ہو گئی۔ بہرحال تم نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے، ایک لڑکی کی زندگی بچا کر۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے جنزاد سے کہنے لگی کہ وہ لڑکی کون ہے جو تمہارے ساتھ رہتی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ لڑکی میری جنزاد بیوی ہے، وہ بھی پہلے خوبصورت تھی، لیکن ایک حادثے میں اس کی خوبصورتی ہمیشہ کے لیے اس سے چھین لی گئی، اسی لیے وہ جسے بھی اس حال میں دیکھتی ہے کہ کوئی اپنی جسمانی اعضاء سے کسی وجہ سے محروم ہو جائے تو وہ اس کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ ابھی بھی اسی نے مجھے تارا کے بارے میں بتایا تھا، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ میں کسی طرح مدد کر کے کسی انسان کے ذریعے اس کی مدد کروں۔ جب تارا نے احمد کا ساتھ پایا تو اس کے چہرے پر بہت خوشی تھی، اور یہ خوشی محسوس کر کے میں اور میری بیوی بہت خوش تھے۔ تم نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن دیکھو، خوبصورتی اور بدصورتی دونوں اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ کسی کے لیے خوبصورتی عذاب بن جاتی ہے تو کسی کے لیے بدصورتی۔ تم بتاؤ تمہیں کس چیز میں خوشی ہے؟ میں نے کچھ سیکنڈ تک اس کی بات پر غور کیا اور اس جن سے کہنے لگی کہ میں صرف اپنے حال میں خوش رہنا چاہتی ہوں، مجھے اپنی بدصورتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لوگوں کو میری بدصورتی سے فرق پڑتا ہے۔ وہ مجھے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، یہ سن کر میرا دل ضرور کرتا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا تھا کہ میں خوبصورت لڑکی کے روپ میں ڈھل جاؤں۔ میں اداس لہجے میں جنزاد سے کہہ رہی تھی، تو وہ میری بات سن کر مسکرایا اور مجھے کہنے لگا کہ لوگ تو نادان ہوتے ہیں، اس دنیا کی سب سے بدصورت مخلوقات وہ جنات ہیں جو انتہائی کالے ہیں، بدناک اور بدصورت ہوتے ہیں، لیکن دیکھ لو پھر بھی وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ انہیں طرح طرح کے ناموں سے پکارتے ہیں، لیکن انسان جنات سے کس قدر خوفزدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ خوبی عطا کی ہے کہ وہ کسی بھی انسانی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں۔ اسی لیے تم بھی اپنی بنائی ہوئی صورت پر اس رب کا شکر ادا کرو، بجائے اس کے کہ تم اپنی بدصورتی کو خوبصورتی میں ڈھالو۔ اپنے دل کو اتنا خوبصورت بناؤ اور لوگوں کی اسی طرح سے مدد کرتی رہو۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ آج کے بعد تمہیں زندگی میں کبھی کوئی مالی پریشانی نہیں ہوگی۔ تم نے ہمارے کہنے پر اتنا بڑا کام کیا۔ اس لڑکی کے دکھ درد کو اپنے دل سے محسوس کیا، اس لیے یہ تمہارا انعام ہے۔ جنات نے یہ کہتے ہوئے ایک چھوٹا سا بیگ میرے ہاتھ میں تھمایا۔ اس بیگ میں اتنی مال و دولت ہے کہ تمہاری اور تمہاری چھوٹی بہن کی زندگی ہمیشہ کے لیے عیش میں گزرے گی۔ جاؤ اور جا کر اس کا صحیح استعمال کرنا، کیونکہ یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے دیا ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ آج کے بعد اس جنگل میں تمہیں دکھائی نہیں دوں گا، اور نہ ہی میری بیوی، کیونکہ اب ہمیں کہیں اور جانا ہے، کسی اور انسان کی مدد کرنے کے لیے۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے اپنے وجود کی طرف دیکھا تو میں پہلے والی بدصورت مہرو کے روپ میں ڈھل چکی تھی۔
لیکن مجھے اپنی یہ بدصورت صورت آج بدصورت نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس سے بے پناہ خوش تھی اور سوچتی تھی کہ ہر چیز کا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے۔ خوبصورتی کے پیچھے چھپے ہوئے فائدے تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات لوگ اسی خوبصورتی کی وجہ سے کسی بڑے عذاب یا نقصان سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان جنات کی دی ہوئی دولت سے میں نے اپنا چھوٹا سا گھر بنوایا اور نورا کو اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ کیوں نہ حالات کی ستائی لڑکیوں کے لیے میں کچھ کروں۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی بستی کی لڑکیوں کے لیے ایک چھوٹا سا سلائی سینٹر کھولا، جس میں بالکل مفت ان کو سلائی، کڑھائی اور ہنر سکھایا جاتا۔ وہ لڑکیاں سینٹر سے ہنرمند بن کر اپنے گھر والوں کا آج سہارا بن سکتی ہیں۔ آج کوئی بھی میری بدصورتی کو نہیں دیکھتا، بلکہ میرے کیے ہوئے کام کو دیکھتا ہے۔ سینٹر کی لڑکیاں مجھے میڈم مہرو کے نام سے پکارتی ہیں۔ وہ لڑکی جسے کل تک لوگ کالی چڑیل اور بھوتنی کے نام سے پکارتے تھے، آج وہ میڈم مہرو بن چکی ہے۔